जमात इस्लामी हिंद कोलकाता मेट्रो सिटी के जानिब से आज एक मुहिम का आगाज़ किया गया। सीरत मुहिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम वलादत के मौके पर इस मुहिम को चलाया जाएगा। ये मुहिम 5 सितंबर ता 14 सितंबर तक कोलकाता में जगह जगह चलाया जाएगा। इस हवाले से हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान ने क्या कुछ कहा, जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी हिंद कोलकाता मेट्रो सिटी से है, आइए हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। शुक्रिया। शाह साहब साबिक़ अमीर हल्का से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो इस मुहिम के बारे में कुछ इज़हार ख्याल करें। इस मुहिम के इफ्तिताही कलमात के लिए मैं जनाब शहर जुल्फ़िकार अली गाज़ी साहब को दावत देता हूँ कि वो इस इफ्तिताही कलमात से कुरान का आगाज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिल अमीन व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा अरसलनाका इल्ला रहमाताल लिल आलामीन। প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে এবং আপনাকে অত্যন্ত ভালোবেসে মানুষ রূপে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কল্যাণের মানসিকতা নিয়ে নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ যারা যুগে যুগে কাজ করছেন তাদের প্রতি বর্ষিত সালাম, শান্তি এবং আজকে আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের সবাইকে জানাই মোবারক তথা সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আপনারা জানেন যে সবথেকে বিশ্বে চর্চিত যে ব্যক্তিত্ব তিনি মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা তাকে ভালো বলি বা না বলি, বিশ্বের সমস্ত মানুষ তাকে ভালো বলুক বা না বলুক, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন তুমি মুবাশশির, তুমি নাজির, তুমি সুসংবাদ দানকারী, তুমি সতর্ককারী, তুমি শ্রেষ্ঠ মুআল্লিম, শিক্ষক, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তুমি হচ্ছে রাহমাতুল লিল আলামিন। সমস্ত সৃষ্টির জন্য তুমি করুণার আধার। ইউ আর মার্সি ফর অল, তুমি সকলের জন্য করুণার আধার। এই ব্যক্তির ব্যাপারে মুসলিমরা তো জানে, তারা একটা বিশেষ দিনে তার ব্যাপারে কিছু আলোচনা করে, কিছু কর্মসূচি হাতে নেয়। কিন্তু আমরা মনে করি যে এটা এনার মতো ব্যক্তিত্বের জীবন খালি একটা দিনের কিছু কর্মসূচির মাধ্যমে যারা পরিচালনা করছেন বা কর্মসূচি করছেন তাদেরকেও ভেবে দেখা উচিত, যেমন করে আমরা আপনাদেরকেও ভাবার জন্য অনুরোধ করছি। যে ব্যক্তি সমস্ত মানবতার জন্য কল্যাণকর, যিনি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আর ঘুম থেকে ওঠা থেকে ঘুমানো পর্যন্ত, রান্নাঘর থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত সমস্ত দিকে একটা দৃষ্টিকোণ রাখতে পারে, তার জীবন শুধুমাত্র কি একটি দিনই কিছু কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে? আচ্ছা, আমরা যারা বাই বার্থ মুসলিম থাকলাম, বাকি যাদের জন্য তিনি রহমত স্বরূপ থাকলেন, তাদের কাছে বার্তাটা কে পৌঁছাবে? সে দায়িত্ব তো আমাদের। তাই জামাত ইসলামী হিন্দ কলকাতা মেট্রো সিটির পক্ষ থেকে, যে কলকাতা মেট্রো সিটির আয়তন আপনারা হয়তো জেনেছেন, কেএমডিএ কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির আন্ডারে যত এলাকা আছে, টোটাল এলাকাটাই বেসিক্যালি কলকাতা মেট্রো সিটির আন্ডারে। তাই মেট্রো সিটির আন্ডারে যে সমস্ত এলাকাটা রয়েছে সেই এলাকার মানুষদের কাছে খাস করে এই রবিউল আউয়াল মাসকে সামনে রেখে আমরা একটা কর্মসূচি হাতে নিয়েছি, যা ইতিমধ্যে আপনারা জেনেছেন 5 সেপ্টেম্বর থেকে 14 সেপ্টেম্বর। এই কর্মসূচির মধ্যে আমরা এই অভিযানের মাধ্যমে বা প্রচার মাধ্যমে আমরা বেশ কয়েকটা বিশেষ কর্মসূচি নিয়েছি, যা সাধারণ কিছু কর্মসূচি আছে, কিছু আছে অসাধারণ। একদিকে যেমন আপনাদের মতো লোকদের নিয়ে প্রেস মিটিং, অন্যদিকে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের নিয়ে আমাদের আলোচনা, অন্যদিকে থাকবে সাধারণ মানুষদের নিয়ে, যুবকদের নিয়ে, তরুণদের নিয়ে, যুবতীদের নিয়ে, ছাত্রীদের নিয়ে প্রোগ্রাম, কুচিকাঁচা বাচ্চাদের নিয়েও কর্মসূচি থাকবে, হসপিটাল ভিজিট থাকবে, যেটা আমরা অনাথ আশ্রম বলি, সেই অনাথ আশ্রমের মানুষদের সাথে আমরা সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করব। আমরা ওভারঅল আলেমে দিন থেকে শুরু করে আর সাধারণ জ্ঞানী সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আমরা আমাদের যাদের পাশে পাবো, অর্থাৎ আমাদের পাশে যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে ভাবনা। যেহেতু তিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের জন্য কল্যাণ করে এসেছিলেন, তিনি সমস্ত সেক্টরে কল্যাণের বার্তা রেখেছেন, যার বিস্তারিত কথা আমাদের যারা স্পিকার আছেন ডিটেলসে বলবেন ইনশাআল্লাহ। আমি আপনাদের কাছে আহ্বান করছি, আমাদের এই 10 দিনের কর্মসূচি আপনারা ভালো করে জানুন, বুঝুন এবং আপনাদের যে মৌলিক দায়িত্ব মানুষের কাছে পৌঁছে দিন। আপনারা যদি আপনাদের সঠিক হক আদায় করেন, আশা করা যায় আমাদের
সমাজ, রাজ্য তথা দেশ একটা পজিটিভ জায়গায় যাবে, এই আশা নিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত কথা শেষ। जमात इस्लामी हिंद कि मैं असिस्टेंट नाजमा आमना खातून मैं कोलकाता मेट्रो सिटी की मैं नाजमा जमात इस्लामी हिंद, ठीक है। 5 सितंबर से 14 सितंबर तक हम लोगों की एक मुहिम चल रही है। रहमतुल लिल आलमीन कि हमारे नबी को सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया है। इस मुहिम के तहत हम लोगों को बहुत सारी जो चीज़ें आई हैं सामने, उनमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि वो अपने बच्चों को बहुत मोहब्बत करते थे। हज़रत इमाम हसन और हुसैन को वो माथे पे बोसा ले रहे थे, गाल पे बोसा ले रहे थे, तो साहबा करीम को हैरत हुई। उन्होंने गौर से उसको देखा और पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं तो, मेरे 10 बच्चे हैं, मैं तो कभी इन बच्चों को प्यार नहीं किया। तो सोचिए कि रहमतुल लिल आलमीन ने मोहब्बत का इजहार खुलेआम किया कि तुम अपने बच्चों से मोहब्बत करो, तुम अपने बच्चों को इखलाक सिखाओ, तुम अपने बच्चों को वो बातें सिखाओ जो दीन में ज़रूरी करार दी गई है। तो आप और हम ये जानें कि रहमतुल लिल आलमीन इन तमाम चीज़ों पर हम लोग अमल करें और जानें कि हमारे ज़िंदगी में क्या खामी है और क्या अच्छाई है। अगर हम लोग रहमतुल लिल आलमीन के बनने वाले हैं तो उनकी अच्छाइयों को खुद भी सीखें और दूसरे तक लेके जाएँ, ताकि ये हमारी मुहिम जो है उसको कामयाबी मिले और कोशिश करें कि इसको आगे से आगे बढ़ाया जाए। शुक्रिया। I am Dr. Sawatar, Assistant Nazma, Jamaat Islami Hind, Metro City, Kolkata. We are having one campaign on Prophet Muhammad, peace be upon him, Rahmatul Alameen, that means mercy for all. We are having this campaign from 5th September to 14th September. We want, through this campaign, we want the people of our people to know more about the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how he shows us his through his life, what is the way of life, how he spent his life, and we want to, especially for the women, the women department of Kolkata Metro City is also participating in this campaign, through which we want to highlight how Prophet Muhammad, peace be upon him, he gave rights to the women 1400 years back, which was not even given by the most advanced civilizations, like when we talk about the Roman Empire, when we talk about the French Revolution, they all give rights to women after the in 1800s or 1700s. But the Prophet Muhammad, peace be upon him, he gave the rights to the women, and he gave the rights to the women around 1400 years ago. So through this campaign, we want to spread his message the way he gave rights to the women. Thank you very much. জামাত ইসলামী হিন্দ কলকাতা মেট্রো সিটি আগামী 5 সেপ্টেম্বর থেকে 14 সেপ্টেম্বর এক ক্যাম্পেইন হাতে নিয়েছে, যার শিরোনাম হলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাহমাতুল লিল আলামিন। বিসমিল্লাহির রহমানির ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতুল লিল আলামিন, অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠানো হয়েছে গোটা মানবতার শান্তি দূত হিসেবে, রহমত স্বরূপ। তো এই শিরোনামকে সামনে রেখে আমরা কলকাতা মেট্রো সিটির পক্ষ থেকে যে ক্যাম্পেইন হাতে নিয়েছি, সেই ক্যাম্পেইনের মেন লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন আদর্শ, তার কর্ম আমরা কিছু ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি, সেটা না রেখে গোটা মানব সমাজের জন্য তিনি যে কল্যাণের বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছেন, নারীর জন্য তিনি যে রহমত স্বরূপ, নারীর জন্য যেমন আমরা দেখেছি আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে যেখানে নারীর কোনো সম্মান মর্যাদা ছিল না, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই নারীকে দিলেন জান্নাতের মায়ের পায়ের তলে জান্নাত, অর্থাৎ জান্নাতের মায়ের পায়ের তলে জান্নাতের অধিকার দিয়ে দিলেন। আরও আমরা দেখেছি যেখানে নারীর কোনো সম্মান ছিল না, যেখানে নারীরা ছিল লাঞ্ছিত, অপমানিত, ধর্ষিত, সেই নারীর সম্মান তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন। সম্পত্তির অধিকারে তিনি দিলেন, নারীর শিক্ষার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি মানবতা, শান্তির দূত, সমাজে আজকে নৈতিকতার অবক্ষয়, আজকে আমরা দেখছি নারী এবং পুরুষ
নতুন তরুণ যৌবন যুবক যুবতীরা অশ্লীলতার শৈলাবে ভেসে চলেছে, যেখানে নৈতিক অবক্ষয়, যেখানে সমাজে বড়দেরকে সম্মান করা হয় না, ছোটদেরকে স্নেহ করা হয় না। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে, তোমরা ছোটদেরকে সম্মান করো এবং ছোটদেরকে ভালোবাসো এবং বড়দেরকে সম্মান করো। लड़कियां या जो ख़वातीन अब तक तालीम से नहीं जुड़ी हुई हैं मुसलमानों में, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की हों, तो शहर कलकत्ता में आप लोगों का क्या मुहिम है इन सिलसिले में कि मतलब तालीम से जोड़ने के लिए? बहुत अच्छा सर। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मुहिम है कि हम लोग अपने बच्चों को तालीम से जोड़ें, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जुड़े हैं और काफ़ी जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं तालीम में, और तालीम में तो पहली बात है कि हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इक़रा जो उतारा गया था वो तो इल्म के लिए ही उतारा गया था। तो यही तालीम हम लोग घर में भी पहुंचा रहे हैं। लोग लड़कियां आ भी रही हैं, सीख भी रही हैं और कर भी रही हैं। आज माशाल्लाह आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा तालीम लड़कियां ही हासिल कर रही हैं। तो और कोशिश भी जारी रहेगी, ये 14 तारीख तक नहीं, उम्र भर जब तक जारी रहेगी और इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करेंगे। নবীর বার্তা পৌঁছে দেবেন বা অমুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রেও পৌঁছে দেবেন ব্যাপারটা কি? আমরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের কাছে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শ আমরা তুলে ধরব। দেখেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হচ্ছেন সমস্ত আমাদের ভারতবর্ষে যত ধর্ম বর্ণের মানুষ আছে তারা এখনো বিশ্বাস করে তিনি মহামানব, তিনি আদর্শ মানব। আপনি রামকৃষ্ণ মিশনে যাবেন, তো রামকৃষ্ণ মিশনে আমরা তো হচ্ছে এখানে যে রয়েছে সেখানে আমরা গেটের সামনে যে মহাপুরুষদের বাণী দেখেছি, তার মধ্যে যেমন জেসাস ক্রাইস্টের বাণী আছে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী আছে, গৌতম বুদ্ধের বাণী আছে, তো তারা মানে। কিন্তু বিশ্বের সমস্যা হচ্ছে যেগুলো খাতা কলমে বইয়ে আছে এগুলো না মুসলমানরা অনুসরণ করে না মুসলমানরা জানে। সেই জন্য আমাদের আবেদন হচ্ছে আসুন আমরা সবাই জানার চেষ্টা করি, মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে আমরা বোঝার চেষ্টা করি আর তা অনুসরণ করার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের পার্থিব জীবনে অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে। अजीज साहब से मेरा एक सवाल है कि सर दीन की तालीमात गैर मुस्लिमों में कैसे आम किया जाए? दीन की तालीमात गैर मुस्लिमों में कई तरीके से आम किया जा सकता है। पहली तो जो आम करने का तरीका ये है कि आला किरदार हो, जो लोग इस काम को कर रहे हों उनका किरदार, उनके मामलात बहुत ही अच्छे हों और उनके किरदार से लोग मुतासिर हों। पहला काम तो ये हो। दूसरा काम ये है कि वो जो उनकी गुफ्तगू हो या उनकी तकरीर हो उनके किरदार के मुताबिक हो, जो किरदार उनका है उसके मुताबिक हो, तब वो दूसरे लोग मुतासिर हो सकते हैं। तीसरी बात जो बहुत अहम है, जिसके लिए पूरी दुनिया में जो तहरीक इस्लामी है, इस्लाम की जो तहरीक चल रही पूरी दुनिया में, मुसलमानों में अभी पॉपुलर नहीं है, उनके जितने बानी हैं, चाहे मौलाना मौदूदी हों, सैयद कुतुब हों, सैयद कासिम मन्ना हों या दीगर लोग, उनका कहना ये है कि अगर एक छोटे से खित्ते में इस्लाम को पूरे तौर पर नाफिज कर दिया जाए, उसकी शरीयत को नाफिज कर दिया जाए और जहाँ लोग चल फिर के इस्लाम को देख सकें, महसूस कर सकें, चख सकें, तो उससे क्या होगा कि हज़ारों तकरीरों से, हज़ारों वफूद से, हज़ारों जलसों से कहीं ज़्यादा उस छोटे से खित्ते का असर पड़ेगा। अफसोसनाक सूरत हाल है कि पूरी दुनिया में अभी कोई खित्ता ऐसा नहीं है, जहाँ तक थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो ईरान में जो इनकलाब आया है वहाँ कुछ चीज़ें नज़र आती हैं कि अगर वहाँ कोई जाता है तो उसे महसूस होता है कि यहाँ इस्लाम का थोड़ा बहुत इनकलाब आया है। और दूसरे नंबर पे तुर्की में भी थोड़ा बहुत नज़र आता है, लेकिन दीगर ममालिक में ये नज़र नहीं आता है कि यहाँ कोई मुसलमानों का इनकलाब है या मुसलमान यहाँ कोई, बल्कि मुसलमान उसी तरह रहते हैं और उसी तरह करप्शन है, उसी तरह खराबियाँ हैं जिस तरह दीगर मुल्कों में है। जैसे हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, उसमें वो तमाम खराबियाँ हैं, तमाम करप्शन है, तमाम बदउनवानियाँ हैं जो हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मुल्क जो बना था इस्लाम की पैरवी करने के लिए, उसने इस्लाम की पैरवी ही नहीं की। अगर वो इस्लाम की पैरवी करता और वहाँ अमन व अमान होता और वहाँ औरतें महफूज होती, वहाँ लोग बराबरी का कोई निज़ाम होता, वहाँ हक और इंसाफ लोगों को मिलता, वहाँ अदलिया आज़ाद होती, वहाँ जर्नलिज्म आज़ाद होता, तो शायद हमारे इस मुल्क पर भी असर पड़ता। तो गैर मुस्लिमों तक जो बात पहुँचेगी वो इस तरह कि कोई खित्ता हो जो इस्लामी शरीयत के मुताबिक हो जाए, और मुसलमानों के अंदर जो इंफरादी तौर पर लोग हैं, जो जमातें काम कर रही हैं, उनका किरदार बहुत आला हो, बहुत आला वरफा हो, ताकि उनसे लोग मुतासिर होकर इस्लाम की तरफ आएँ। सर आपसे एक सवाल था। हिंदुस्तान में औरतें जो हैं वो गैर मुर्तिद हो रही हैं, उनको उससे कैसे रोका जाए? गैर मुर्तिद हो रही है, माने कन्वर्ट हो रही है दूसरे मजहब। नहीं, मुर्तिद हो रही है। मुर्तिद हो रही है। हाँ। जी जी जी। मुसलमान लड़की और मैंने हिंदू हो रही है। देखिए, केरला वगैरह में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है ये सब जो मामला ये जो लाभ है गैस में कुछ होता है, लेकिन आम ऐसा नहीं होता है। और तहजीब या इस्लामी जो कानून है ये तो आज़ादी दिया है, आप जो चाहते हैं, जिस तहजीब पसंद करते हैं उसका कबूल कीजिए। लेकिन ये हमारा देश का कानून भी ये है, अगर आपका पास सही इल्म इस्लाम के बारे में सही इल्म हो, सही तालीमात हो, तो आप कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इस्लाम के बारे में आपका इंफॉर्मेशन नहीं है, इस्लाम के बारे में आपका नॉलेज नहीं है, तो इसलिए हमारा अगर कोई मुस्लिम इस्लाम से दूसरा तहजीब को पकड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है। तो हमारा जिम्मेदारी है कि इसको फैलाना, और ये जो कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, ये कैंपेन का मकसद यही है कि इस्लाम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी इसको हम फैलाएं। ये कैंपेन क्या ऑल बंगाल बेसिस पे या इंडिया बेसिस पे हो रहा है? देखिए, यहाँ जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बता रहा हूँ, ये सिर्फ कलकत्ता मेट्रो सिटी का है। जमात इस्लामी तो पूरा मुल्क में है, पूरा मुल्क में कहीं स्टेट बेसिस पे होता है, कहीं डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे होता है, कहीं सेंट्रल बेसिस पे होता है। अब ये हमारा ये जो प्रोग्राम है कलकत्ता, खास करके कलकत्ता मेट्रो सिटी के लिए। शुक्रिया। अच्छा, इस्लामी हिंद कोलकाता मेट्रो सिटी के तहत आप लोगों की ये प्रोग्राम चलेगा 5 सितंबर से 14 सितंबर तक। इस्लाम को रोशनास कराने के लिए, स्प्रेड आउट कराने के लिए, प्रमोशन के लिए, अपना पैगाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहुंचाने के लिए। तो क्या आप लोगों ने शहर कलकत्ता में गैर मुस्लिमों, जो नन मुस्लिम हैं, उनके मजहबी पेशवा को, प्रीस्ट को, इंटेलेक्चुअल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को आपने इनवाइट किया है इस प्रोग्राम के सिलसिले में, या अपनी मस्जिदों में उन लोग को बुलाया है, दावत दिया है कि आप आइए हमारे यहाँ का प्रे देखिए, दुआ देख के, दुआ का अंदाज़ क्या है, प्रे का अंदाज़, नमाज का, और क्या अखलाक है, क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहना चाह रहे हैं, उस तरह का कोई मतलब आपने प्रोग्राम रखा है गैर मुस्लिमों को, नन मुस्लिम को बुलाकर? जी, हमारा देखिए इस प्रोग्राम के अलावा और भी प्रोग्राम होता है। खास करके हर साल में एक कैंपेन हम चलाते हैं, गैर मुस्लिम को दावत देते हैं कि आप मस्जिद में आइए, अजान क्या है, कैसे होता है, नमाज क्या है, कैसे होता है, मुसलमान कैसा है। आप देखिए, और सिर्फ मुस्लिम नहीं है, हर ईद में हम गैर मुस्लिमों को हमारा घर में दावत देते हैं। और गैर मुस्लिम के लिए ईद मिलादी प्रोग्राम करते हैं हम। यहाँ भी प्रोग्राम हुआ, शिवपुर में प्रोग्राम, कलकत्ता में हॉल बुक करके हम प्रोग्राम करते हैं, उसमें गैर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल को भी हम दावत देते हैं। और देखिए, हम लोग पहले तो अब्दुल अजीज साहब बताया आपको, हम पूजा पैंडल में स्टॉल लगाते थे। अब ट्रैफिक के वजह से वहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो गया, तो हम स्टॉल नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन दुर्गा पूजा में जो ये होता है, उसमें हम स्टॉल लगाते हैं, उसमें कुछ खिदमत करते हैं, लोगों को पानी वगैरह सब देते हैं, और उसका साथ कुछ फोल्डर इस्लाम का कुछ किताब अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उनको भी देते हैं। फिर कलकत्ता बुक फेयर, आप जानते हैं, कलकत्ता बुक फेयर में भी हमारा स्टॉल रहता है। वहाँ हमारा वॉलंटियर्स लोग रहते हैं, जो लोग इस्लाम के बारे में इंटरेस्टेड है,
उनका सामने कुरान लेके जाना और कुरान देना, इस्लामिक लिटरेचर उनका हाथ में दे देना, ये सब काम हम लोग करते हैं। हम लोगों का कोशिश ये है कि मुस्लिम गैर मुस्लिम सबको सामने इस्लाम का बात हम रखा जाए। रखें। देखिए, बंगला माइन जो है यहाँ पर कल्चर जो होता है, बंगला माइन में दो लोग हम देखते हैं, या तो एक दिन से काफ़ी दूर है या दिन से काफ़ी नज़दीक है। जो लोग दिन से काफ़ी दूर हैं बंगला माइन पर्सन में, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं, हिंदू बन रहे हैं। उनकी कल्चर को मैंने कैसे बचाया जाए, उनकी मैंने देखा बांग्ला में लोग हिंदू बन रहा है, ये इंफॉर्मेशन आपका सही नहीं है। वो इस्लाम को सही अमल नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन वो हिंदू बन के जा रहे हैं, गाय दूसरा मजहब को कबूल करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ केस मिला है कि वो मैंने जो कॉलेज वगैरह में वो लड़कों के साथ परसेप्ट करते, फिर उनके साथ देखिए, स्कूलों में अगर एक दो कुछ वाक़या हो जाए तो इसको सुबह नहीं करना चाहिए। ऐसे कैसे रोका जाए उनका, ऐसे जो मुफ्त इसका जवाब हम पहले दिया है। देखिए, दावत हमको सबको ये देना है। अगर उनका सामने इस्लाम के इंफॉर्मेशन नहीं है, इस्लाम का तालीम नहीं है, इस्लाम क्या वो नहीं जानते हैं, कुरान क्या नहीं जानते हैं, रसूल को नहीं जानते हैं, तो फिर कैसे तहजीब पे उनका इंटरेस्ट रहेगा। इसलिए ये कि हमारा कमजोरी है, हमारा तालीम का सिस्टम नहीं है, तो इसलिए इसमें हमको जोर देना है। स्कूल कॉलेजेस में जिस तरह की पढ़ाई हो रही है, उन्हें कुछ बताया नहीं जाता है, खासतौर से अखलाक के बारे में। तो क्या ज़रूरत है कि स्कूल कॉलेज में, कोई भी मीडियम हो स्कूल कॉलेज में, क्या उन्हें बताया जाए कि देखिए, ये सेकुलर कंट्री है, सेकुलर कंट्री का स्कूल कॉलेज भी सेकुलर होगा, सिलेबस भी सेकुलर होना चाहिए। किसी मजहब का खास तालीम सेकुलर स्कूल से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये मुसलमानों का जिम्मेदारी है कि वो अपना बच्चे को अपना घर में तालीम दें, अपना गांव में मोहल्ला में मस्जिद या मकतब बनाएं, वहाँ से दीन का तालीम दें। ये देना जरूरी है। हम ये डिमांड नहीं कर सकते हैं कि हमारा दीनी मजहब की तालीम कोई सेकुलर स्कूल में हो। हाँ, हो सकता है हम अगर मदरसा खुलें, हमारे यहाँ 2-3 सिस्टम का मदरसा है, हाई मदरसा है, जूनियर मदरसा है, सीनियर मदरसा है, मदरसा हम चला सकते हैं। मदरसा में जरूर तो दीनी तालीम होता ही है। अजीज साहब से एक कंट्रोवर्शियल सवाल है मेरा, आप चाहे तो जवाब ना भी दे सकते हैं। वो सवाल ये है कि यौम जश्न वलादत, इसका कंसेप्ट क्या है सर? यौम वलादत जो हम लोग मनाते हैं या लोग मना रहे हैं, इसका कंसेप्ट क्या है और ये कहाँ से आया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न यौम वलादत का जो सड़कों पर इस तरह से धूमधाम से निकाला जाता है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा हमें, इसलिए। देखिए, जो धूमधाम से मनाते हैं या सड़कों पर जिस तरह का मुजाहरा करते हैं, उसका तो कोई बुनियाद इस्लाम में नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान वाज़ व नसीहत की मजलिस करते हैं और जलसा करते हैं, सीरतुल नबी का कोई इजलास करते हैं, तो वो सही है। लेकिन ये जो दरअसल दूसरे मज़ाहिब में जो चीज़ें नज़र आती हैं, दूसरे मज़ाहिब में जो बर्थडे मनाते हैं या यौम पैदाइश मनाते हैं, तो इस तरह वो मुजाहरा करते हैं सड़कों पे, उसी को मुसलमानों ने अपना लिया है। लेकिन ये कि सारे मुसलमानों ने अपनाया है, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ एक तबका अपनाया है और उनके अंदर भी पहला जैसा जोश और खरोश नहीं है, अब थोड़ा बहुत कमी आई है। আসসালামু আলাইকুম, সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। তো জামাত ইসলামী হিন্দ আগামী 5 সেপ্টেম্বর থেকে 14 সেপ্টেম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাহমাতুল লিল আলামিন অর্থাৎ বিশ্ব মানবতার আধার শান্তির দূত বলা হয়, তো এই ক্যাম্পেইন হাতে নিয়েছে। এই ক্যাম্পেইনকে সামনে রেখে মহিলাদের মধ্যে আমরা অনেক কর্মসূচি নিয়েছেন। তার মধ্যে আমাদের আগে স্যার একটা কোশ্চেন করছিলেন যে নারীদের ক্ষেত্রে বা অমুসলিমদের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ বা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্তা কিভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়, তো সে সম্পর্কে আগামী 14 সেপ্টেম্বর নারায়ণপুর দিক ভিস্তা হলে একটা সুবি সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে ডক্টর মাস্টার বিভিন্ন প্রফেশন লেভেলে যারা আছেন, ইঞ্জিনিয়ার, ডক্টর, মাস্টার বা এলিট শ্রেণী, তাদেরকে ইনভাইট করা হয়েছে।
মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন আদর্শ, তার কর্ম, সমাজ সংস্কার এবং সমস্ত ক্ষেত্রে তার অবদানকে তুলে ধরার জন্য। আর শুধু তাই নয়, ইসলাম নারীর যে মর্যাদা দিয়েছে এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি তার বাস্তব যুগেও দেখিয়েছেন। আমরা জানি আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে যেখানে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না, যেখানে জীবনটা পুঁতে ফেলা হতো, সেখানে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি একজন নারীকে দিলেন মানবিক মর্যাদা। এবং শুধু তাই নয়, গোটা মা জাতি অর্থাৎ নারী জাতির পায়ের তলে স্বর্গ বা জান্নাত বলে আখ্যায়িত করলেন। এই বার্তা আমরা সমস্ত নারী, মুসলিম অমুসলিম সমস্ত নারী সমাজের মধ্যে পৌঁছে দিতে চাই। আমরা দেখেছি বর্তমানে নারীরা নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, দূষিত, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি শান্তির বার্তা দিয়ে গেলেন, যিনি নারীর সম্মান সর্বোচ্চ দান করলেন, সেই সম্মানটা আমরা কেন পাচ্ছি না? এবং সেটা শুধু আমাদের কিছু আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, ধর্মীয় আচার অনুযায়ী। কিন্তু পক্ষান্তরে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই নীতি আদর্শ সমাজের ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে আমরা তার রূপরেখা কেমন দিতে পারি, সেটা আমাদের জামাতে ইসলামী হিন্দের মহিলা শাখা, বিশেষ করে আমাদের মেট্রো সিটির যে ক্যাম্পেইনের কর্মসূচি হিসেবে সমস্ত নারীদের মাঝে ইসলামটাকে তুলে ধরা, তার নবীর জীবন আদর্শকে তুলে ধরার জন্য বিশেষ কয়েকটি কর্মসূচি নিয়েছে। তার মধ্যে বিকালের আসর আছে, সিম্পোজিয়াম আছে, সেমিনার আছে এবং সামষ্টিগত সাক্ষাৎ, ডোর টু কন্ডাক্ট, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ, পারিবারিক সাক্ষাৎ আয়োজন করা হয়েছে। আর বিশেষ করে আমাদের এই ক্যাম্পেইনটা শুধু যে 5 সেপ্টেম্বর থেকে 14 সেপ্টেম্বর নয়, বরং এটা একটা সূত্রপাত আমাদের গোটা মানব জীবনে সেই আদর্শ হযরত মহামানব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই আদর্শ, তিনি যে শান্তির দূত, এই শান্তি সমাজে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, নারী এবং পুরুষ পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, অর্থনৈতিক সমস্ত জীবনে কিভাবে ব্যালেন্স আনা যায়, ন্যায় নীতি সাম্য কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, আমাদের গোটা অল ইন্ডিয়া যেমন মুসলিম মহিলা শাখা আছে, স্টেটে যেমন মহিলা শাখা আছে, আমাদের নেশনসি মহিলা শাখারও সেই প্রচেষ্টায় ক্যাম্পেইনকে সামনে রেখে যেমন করবে এবং সারা বছর ধরে এই তার কর্মসূচিটাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা করবে বলে आशा रखी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब से एक सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक मजहबी रहनुमा बनाकर पेश किया गया। हालांकि उन्होंने जो अरब इनकलाब लाया, एक समाजी इनकलाब लाया, सियासी इनकलाब लाया, फतेह मक्का के बाद जब वो और जंग बदर के बाद जो कैदियों जो सलूक किए, लेकिन आम लोग या जनरल पीपल में उनको सिर्फ एक मजहबी रहनुमा बनाकर पेश किया गया। हालांकि वो तारीखी रहनुमा भी है, समाजी रहनुमा भी है, सियासी रहनुमा भी है। इस मुहिम के ताल्लुक से क्या बोलेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपका जो सवाल है उसके जवाब में इस मुहिम के ज़रिए हम लोग यही कोशिश करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स की, उनकी जो बातें थी, उसको हम लोग सिर्फ एक मजहबी, जो आप जैसा बता रहे हैं कि लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि वो सिर्फ मजहबी रहनुमा थे, तो उनके टीचिंग्स को हम लोग इसीलिए इस कैंपेन के जरिए आम करना चाहते हैं, ताकि लोग ये समझ सकें कि इस्लाम सिर्फ किसी मजहब का नाम नहीं होकर एक वे ऑफ लाइफ है, जो हमको बताता है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, हम अपनी परिवार की ज़िंदगी में हमारे कैसे, हमको परिवार में अपने कैसे ज़िंदगी गुजारना है, समाज में हमारा क्या रोल होना चाहिए, ना सिर्फ मर्दों में बल्कि औरतों के लिए भी। तो इस कैंपेन के तहत हम लोग सवाल जो आपका है उसके जवाब में यही कैंपेन के जरिए हम लोग चाहते हैं कि लोग इसको इस तरह के मतलब जो गलतफहमियां हैं उनके बीच में कि सिर्फ मजहबी रहनुमा थे, मजहबी रहनुमा तो थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारने, उनकी पूरी जब सीरत को हम लोग आम करना चाहते हैं, ताकि लोग पढ़ें, मुताला करें, उनको पता चले कि वो अपनी ज़िंदगी में कैसे थे, कैसे वो दूसरों की मदद करते थे, कैसे वो नॉन मुस्लिम्स के साथ बिहेव करते थे, कैसे वो यहूदी और नसारा के साथ रहते थे, उनका क्या इस्लाम जो उनका इंसाफ का जो तरीका था वो कैसा था। तो इन सब के जरिए इस कैंपेन के जरिए हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी टीचिंग्स को लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोग समझ सकें कि इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है वो सिर्फ एक मजहब तक या एक इस्लाम मजहब तक ही महदूद नहीं है, बल्कि एक वे ऑफ लाइफ बताती, जो आपको बताती है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो इस मुहिम के जरिए हमारी ये कोशिश है। ठीक, शुक्रिया।